Is it visible to all of you? I have shared a screen. Is it visible to all of you? Yes, sir. Hello? Okay, okay. So basically, this is unit 4 of your syllabus. In this domain, we will cover the routing of the packet, how we can route the packet. So network layer in the TCP/IP protocols, so it is responsible for the host-to-host delivery of datagram. This is very important. If someone asks about what is the role of network layer in the OSI model, so you just say that it is a type of layer in the TCP/IP, that is Transfer Control Protocol or Internet Protocol. It uses this particular scheme, that is TCP and IP system, means it can transfer the packet or message through exactly what a type of internet service. It just provide the transferring of the packet through the internet services. Clear? And basically, it covers exactly what the host to host delivery of the datagram. Exactly. Clear? And you all are aware that if I take the example, you can see in the post office, you can see in the post office what postman do. It's exactly what it exactly the postman what exactly do, the delivery of the parcel from one end to another end. Clear? But it should make sure that the packet should not interrupt in between the transmission from the host to destination. पैकेट में कोई भी आपका इस तरह से कोई मैन्यु मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो जाए फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ट्रांसमिशन. So it should be make sure that the packet should be properly safe and secure. Clear? So this is the major issue. So आप लोग को पता है जैसे कि पोस्टमैन हमारा क्या करता है, एक एंड से दूसरे एंड तक पार्सल को डिलीवर कर देता है, और वो पार्सल आपका आ रहा होता है कई सारे स्टेप्स होते हुए. ठीक है ना? तो सारे स्टेप्स में क्या होता है कि उस पार्सल को कोई भी ओपन नहीं कर सकता. जो पैकेट है वो पैकेट इज ऑलरेडी पैकेट फॉर्म. क्लियर? जब तक वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाता है, और डेस्टिनेशन पे जाने के बाद वो हमारा फिर उसको हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं मैसेज को. क्लियर? सो दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ दिस. सो इसमें हम लोग जैसे कुछ पॉइंट कवर करेंगे. पहला सेक्शन ये है कि आपका इट इंट्रोड्यूसेस द नेटवर्क लेयर. बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट है, is defining the services provided by this particular layer. Clear? First we will discuss the packetizing, means how we can make a packet. आपको ये भी ध्यान रखना है जो नेटवर्क लेयर से हमारा इंफॉर्मेशन शेयर होती है वो पैकेट्स फॉर्म में होती है. क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है. एंड देन वी विल डिस्क्राइब अबाउट द फॉरवर्डिंग एंड रूटिंग ऑफ द पैकेट and compare both of them. What is the forwarding, what is routing, then we will discuss about flow and error control along with the congestion control. Clear? Now the second section we will discuss the packet switching. There are two type of mechanisms through which we can transfer the data. First one is packet switching, another one is circuit switching. ठीक है? सर्किट स्विचिंग हम लोग यूज करते हैं फिजिकल लेयर में. फिजिकल लेयर आप सभी को पता होगा, दैट इज द लेयर इन द ओएसआई मॉडल. एंड जो पैकेट स्विचिंग यूज होता है वो नेटवर्क लेयर में यूज होता है. ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एक क्वेश्चन है आपका कि पैकेट स्विचिंग हम कहाँ यूज करते हैं. तो पैकेट स्विचिंग वी यूज इन द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, एंड द सर्किट स्विचिंग यूजेज इन द फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल. माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. माय वॉइस? Yes. ओके, okay, okay. So now the next content we will cover the third section exactly. No, in the second section we also cover the virtual circuit approach. Clear? How we can form the virtual circuit for packet switching. Clear? So we will cover in this section. And the third section discusses about the network layer performance.
means how the network layer performance get affected. So how we can overcome that particular problem through several schemes. So that particular portion will be covered in the third section. It basically describes different delays that occurs in the network layer communication. Means when the packet is transmitting from the source end to the destination end, it basically affected through various type of communication delays. Clear? So in the path, so we just how we can overcome that delay during the transmission of the packet. So it is another point that we will cover. Clear? It also mentioned the issues of the packet loss. Finally, if the network issue is there, as we all know that when we perform the calling from the one end, clear? Suppose we make a call to someone, and during the network, if suppose the call is going on and there is some network issue, then you see that the call may disconnect, or the call may forward, or call may connect to another one. Clear? Except that where you have made the call, आप जहाँ कॉल कर रहे हो उसके अलावा कहीं और कॉल कनेक्ट हो जाती है, तो देर इज वेरी मच प्रॉब्लम. So this is called what? The packet loss or in the information loss. Means your information is going somewhere else where it should not go. Clear? So this is the major cause. So we just lot. तो इसमें पैकेट लॉसेस भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपका जो है डिस्टेंस लॉन्ग है तो उस पर पैकेट लॉस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. Now the fourth section we will discuss about the IPv4 addressing. This is very most important part of the network layer, that is Internet Protocol version 4. IPv4 means Internet Protocol. V stands for version 4. दो बेसिकली दो एड्रेसिंग स्कीम होती हैं, एक IPv4 एंड एक IPv6. Internet Protocol version 4 and Internet Protocol version 6. So two types of addressing is there. Clear? So we will discuss about the IPv4 addressing. ठीक है? इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासलेस एड्रेसिंग क्या होती है, क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होती है, ये सब हम लोग देखेंगे. क्लियर? उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग DHCP प्रोटोकॉल के बारे में. दैट इज आल्सो नोन एज डायनेमिक कंट्रोल प्रोटोकॉल. एक तरह से ये डायनेमिकली कंट्रोल्ड होता है. ठीक है? तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस DHCP protocol. Then the fifth section and the last section will cover with the forwarding of the network layer packets. How we can forward the packet in a network layer. Clear? So we will all discussing in this domain. So now, first of all, we will cover the network layer services. I think the diagram is visible to all of you, na, clearly. Is there any issue with the diagram? Kindly tell. Is there any issue with the diagram? Hello? No, sir, no issue with the diagram. Okay. So basically, as I have already told you, the major function of the network layer in the OSI model is to route the packet from one end to the another end. Means host to destination delivery is the major portion which will cover in the network layer. So this is the major service which it provides. Clear? So आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, suppose Alice and Bob want to communicate to each other. Clear? The Alice you can see on the upper side, there is Alice. Clear? And on the bottom side you can see there is a Bob. यहाँ पे आपका Alice है और यहाँ पे Bob है. ठीक है? ये दोनों here. Clear? Because जो पैकेट जो डॉटेड लाइंस हैं, तो कम्युनिकेशन में कुछ डॉटेड लाइंस आपको दिख रही हैं. मैं थोड़ा जूम करके भी दिखाने की कोशिश करता हूँ. If I zoom it,
then you can see there are some dotted line. ये जो dotted line आपको दिख रही हैं, ये जितनी भी हैं, ये सब क्या है? ये सब पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस एरिया नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ आपकी लैन स्विचेज हैं जो आपको दिख रही होंगी, कुछ लैन स्विचेज हैं, जैसे ये आपकी लैन स्विच है, ठीक है। दिस इज अनदर लैन स्विच दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क स्विचिंग which provide the local area network switching. कुछ आपकी वैन स्विच हैं, ये आपकी वैन स्विच हैं जो कि वायरलेस एरिया नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद कुछ राउटर्स लगे हुए हैं, यू कैन सी दीज आर द राउटर्स, सम राउटर्स आर आल्सो देयर। सो आपके राउटर्स लगे हुए, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं, मींस एक जगह से दूसरे एंड पे जाने के लिए पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। पैकेट को रूट करने के लिए जो भी पैकेट ट्रांसमिट होता है उसमें एक हेडर इंफॉर्मेशन जरूर होती है, ठीक है। उसमें एक हेडर इंफॉर्मेशन जरूर होती है विच इंक्लूड द सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी पैकेट जब भी रूट होता है तो इट कंटेन्स द हेडर इंफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? विदाउट हेडर नो पैकेट विल गेट रूट, ठीक है ना। इज इट क्लियर? Yes, sir. जब भी हम कोई चीज, जैसे आपको पता होगा ना, जैसे कहीं से पार्सल चलता है पोस्ट ऑफिस में आने से पहले, तो वो मतलब आप जैसे आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं कोई पार्सल को डिलीवरी देने के लिए या कोई पार्सल को सेंड करने के लिए, तो आप उसमें उसका एड्रेस जरूर डालते हैं कि कहाँ वो जाना है और कहाँ से हम उसको ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो हेडर जो होता है हर एक पैकेट के साथ इंक्लूड होता है, पैकेट में भी द डेटाग्राम ऑल्सो। जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है या तो वो कंप्लीट पैकेट फॉर्म में हो रही है या डेटाग्राम फॉर्म में हो रही है। डेटाग्राम में ऑल्सो भी द पार्ट ऑफ द पैकेट, मतलब जैसे अगर पैकेट को हम फ्रेगमेंट कर दें, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दें, अगर ये तोड़ने वाला काम भी तभी हम करते हैं जब पैकेट बहुत ज्यादा लेंथ का होता है, उसको ट्रांसमिट करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तभी हम उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो कंप्लीट पैकेट इंफॉर्मेशन ही ट्रांसमिट होती है। क्योंकि जो हमारा, अगर मान लीजिए हम पैकेट को ब्रेक कर देते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है कि कई बार कलेक्शन में कोई ना कोई पैकेट मिस हो जाता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको जनरली उस पैकेट को बाइंड रखते हैं कि वो पैकेट फॉर्म में ही जहाँ से तो डेटाग्राम ना बनने पर। क्योंकि अगर वो मान लीजिए छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ देंगे तो उसको रिसीव करने में भी हमको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक रिसीवर के पास सारे वो छोटे छोटे पैकेट नहीं आ पाएंगे तब तक वो उसको असेंबल नहीं करेगा। असेंबल करेगा तो इस असेंबलिंग में भी कोई पैकेट लॉस हो, कोई डेटा लॉस हो गया हो, तो इसलिए हम लोग उसको कंप्लीट पैकेट फॉर्म में ट्रांसमिट करना है आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहता है, ठीक है। तो एलिस ने क्या किया, आपको लेयर सारी दिख रही हूँ 7। एलिस ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट लेयर से एक पैकेट को ड्रॉ किया, ठीक है। ड्रॉ द पैकेट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर। उसमें एक हेडर इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करा। हेडर में मींस एड्रेस इंफॉर्मेशन है, सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस, क्लियर। फिर वो आप देख सकते हैं वो नीचे होते हुए इट फॉलो सम राउटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ से होते हुए इट गोज हेयर हेयर, यहाँ से होते हुए एसएस से होते हुए ये डेस्टिनेशन पे जाएगा। दिस इज द डेस्टिनेशन वेयर द बॉब इज देयर। सो ये क्या करेगा, Sir, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नो आई थिंक दैट वॉइस में क्लियर।
Now it is clear. Hello. Now the voice is clear. Yes, sir. Much better. Okay. बीच में नेटवर्क इशू आ जा रहा है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है. I'm still trying to solve this problem. So what we have discussed again. So we have just covered this particular routing process where we have discussed how the packet gets routed here from one end to another end. Now, if someone asks about how if the packet get lost during the routing process, then how we can control? So I'm just sharing again. It's some issue. Is it clear to all of you? Hello. Hello. So we have a different route for the transmission. You can see we have route 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Clear? So suppose we have. Hello, my voice is clear. Hello. Yes, sir. Clear. Hello. So you think that like that through different routing steps. See, suppose we have a sky research from where the LAN switch accept the data from the ALIS, getting the data from the transport layer, and it can communicate from LAN switch to router 2. Clear? And router 1 is also there, which accept the data from the internet service providers, and then it goes to router 4. Clear? Then router 4 transfer it to the what? The WAN switches. Clear? Which are the form of first, second, and third. Clear? It is again connected with the router 3, which is providing the internet services to others, and then it goes to router 5 and then communicate with the again internet service provider router 7 and router 6. Clear? And then goes to what? The Bob side. Then Bob exactly what to Bob decapsulate the data and again transfer it to the transport layer. Clear? Basically दो स्टेप्स होते हैं. पहले तो पैकेट को लेता है ट्रांसपोर्ट लेयर से, जो हमारा स्टार्टिंग नोड है या सोर्स नोड है. देन इट परफॉर्म द एनकैप्सुलेटिंग ऑफ डेटा, मींस उसमें कुछ ना कुछ ऐड करेगा, सिक्योरिटी मैकेनिज्म या इसको एक तरह से कह सकते हैं आप, उसमें एनक्रिप्शन करेगा जिससे डेटा हमारा सिक्योर रहे. ठीक है.
उसके बाद क्या करेगा, अगर वो पैकेट लॉन्ग है तो उसको ब्रेक करेगा, अगर नहीं लॉन्ग है तो उसको नॉर्मली रखते हुए और पैकेट को हेडर के साथ ऐड करते हुए, हेडर विल इंक्लूड द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, और उसको ट्रांसमिट कर देगा रिसीवर साइड पे, ठीक है। फिर बॉब के पास जब वो जाएगा तो बॉब देन बॉब विल डू व्हाट, बॉब विल प्रोवाइड द डीकैप्सुलेशन ऑफ डेटा, उस डेटा को डीकैप्सुलेट करेगा, इट हैज द एनक्रिप्टेड की और डिक्रिप्टेड की, ठीक है, उससे उसको डिक्रिप्ट करेगा मैसेज को, एंड देन इट अगेन हैव द हेडर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेस्टिनेशन एड्रेस, क्लियर। सो वो उस डेस्टिनेशन को ट्रांसफर कर देगा। ये हमारा पूरा सर्विस है जो नेटवर्क लेयर प्रोवाइड करता है। These all are given in this, clear? So you can see at the source end, network layer accepts a packet from the transport layer, encapsulate the packet in a datagram and deliver the packet to the data link layer. At the destination, the datagram is just decapsulated and the packet is extracted and delivered to the corresponding transport layer, ठीक है। बेसिकली जो सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाता है जब पैकेट, तो वो सारे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल लेयर को फॉलो करता हुआ जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसको हम पैकेटाइजिंग पे जाते हैं। अगर हम, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द नेटवर्क लेयर इज डिफाइनिंग पैकेटाइजिंग। पैकेटाइजिंग का मतलब होता है उसको पैकेट फॉर्म में बनाना। पैकेटाइजिंग में आपका क्या क्या आता है, एनकैप्सुलेटिंग द पेलोड, मींस डेटा जो आप रिसीव कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर से, उसमें एनकैप्सुलेट करना उसको। जैसे आप लोग जानते होंगे कैप्सूल्स वगैरह होते हैं जिसमें सारी आपकी जो आपका रॉ मटेरियल होता है या जो भी कुछ है जो मेडिसिन से रिलेटेड है, उसको हम उसको एक पर्टिकुलर पैकेट में इंक्लूड करा लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एनकैप्सुलेशन ऑफ द डेटा, क्लियर। So the first duty of the network layer is defining the packetizing, which encapsulating the payload, that is data received from the upper layer in the network layer packet at the source, and decapsulating the payload from the network layer packet at the destination, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, वो एनकैप्सुलेशन होगा, फिर लास्ट में डीकैप्सुलेशन होगा डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो एक तरह से जो नेटवर्क लेयर की ड्यूटी है वो क्या है, पेलोड को कैरी करना, कहां से कहां तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक, विदाउट एनी चेंज इन इट, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे आपका कोई भी मैसेज जब ट्रांसमिट होता है एक एंड से दूसरे एंड पे, तो उस ट्रांसमिशन में बीच में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। यू शुड मेक श्योर दैट द पैकेट शुड ट्रांसमिट विदाउट एनी चेंज इन बिटवीन द ट्रांसमिशन, क्लियर, अदरवाइज द इंफॉर्मेशन गेट लॉस। मेरी बात समझ में आ रही सभी को? यस सर। तो जो सोर्स एंड होता है वो पेलोड को रिसीव करता है अपर लेयर प्रोटोकॉल से, उसमें हेडर ऐड करता है which contains the source and destination address and some other information may also added into the system by the into the packet by the network layer protocol, clear। डेस्टिनेशन होस्ट क्या करता है, वो रिसीव करता है पैकेट को डेटा लिंक लेयर, फ्रॉम द डेटा लिंक लेयर, उसके बाद उसको डीकैप्सुलेट करता है पैकेट को और डिलीवर कर देता है पेलोड को ऑफ द करेस्पॉन्डिंग अपर लेयर प्रोटोकॉल, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। मतलब उसी को ट्रांसपोर्ट लेयर को डिलीवर कर देता है। वो आया भी ट्रांसपोर्ट लेयर से था और जाएगा भी ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, ठीक है। अगर आप पैकेट को फ्रेगमेंट करते हैं सोर्स एंड पे या फिर राउटर के पास, ठीक है, तो उस पर क्या करना होगा, अगर मैंने बताया था ना, अगर पैकेट बहुत लंबा आएगा उसको फ्रेगमेंट करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, तो उसको लास्ट में डेस्टिनेशन पे रीअसेंबल भी करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक पैकेट है हमारे पास एल लेंथ का, उसको आपने, बहुत बड़ा पैकेट है, उसको हमने L1 L2 L3 L4 इस तरह से ब्रेक कर लिया ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि जो छोटे पैकेट कर रहे हैं, ना, फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, तो फिर मतलब हो सकता है सीक्वेंस इधर से उधर हो जाए, उसके हाँ लिए हम तो लोग क्या वही, एनकोडिंग करते हैं, मतलब जैसे हाँ पहले की थी नहीं एनकोडिंग। नहीं हाँ हाँ, एनकोडिंग तो आपको करना ही पड़ेगा पैकेट के अंदर, क्योंकि आप एनकोडिंग नहीं करेंगे
तो उसको एग्जैक्टली क्या है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है पैकेट को इन बिटवीन द रूट, ठीक है ना। एनकोडिंग करते हैं जिससे सोर्स और डेस्टिनेशन को उसके बारे में केवल पता होता है, बाकी किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो हम पैकेट को फ्रेगमेंट करते हैं, फ्रेगमेंट तभी करेंगे जब पैकेट बहुत ज्यादा लेंथ का होगा, अदरवाइज हम उसको नॉर्मली पैकेट फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं। फ्रेगमेंट करने के कुछ और भी फायदे हैं, जैसे अगर पैकेट को हम लॉन्ग लेंथ का है तो उसको डिले ज्यादा होगा ट्रांसमिशन में, क्योंकि उसको हैंडल करना, कैरी करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम उसको छोटा कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो ट्रांसमिशन में डेटा को कम कंज्यूम करता है। जैसे छोटे छोटे पैकेट हो गए तो उनको कम डेटा या कम बैंडविड्थ चाहिए ट्रांसमिशन के लिए, एज कम्पेयर टू द बिग साइज ऑफ पैकेट, ठीक है। तो वो क्या है, धीरे छोटे छोटे पैकेट जल्दी ट्रांसमिट हो जाते हैं और कम टाइम लेते हैं। लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि सपोज मान लीजिए हमने उसको L1 से L6 तक ब्रेक किया था, तो इट में हैपन दैट इन द रूटिंग मैकेनिज्म, जब वो राउटर 1 R2 R1 इस तरह से पास से होकर जब वो गुजर रहा है, तो उस ड्यूरेशन में कोई डेटाग्राम लॉस भी हो सकता है, कोई पैकेट आपका बीच में से मिस हो सकता है, स्मॉल पैकेट। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और उसमें उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो डेस्टिनेशन होता है, अगर वो उसको रीअसेंबल करेगा, तो हो सकता है उसको पता चला कि हमारे पास L1 से L6 में L4 हमारे पास मिसिंग हो गया, ठीक है। और उसमें एक चीज और है, तो जैसे जब L4 मान लीजिए मिसिंग हो रहा है, तो उसमें एक मैकेनिज्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक तरह से कह सकते हैं आप, क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्लियर, या एक तरह से कह सकते हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक पैकेट लॉस हुआ, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए की आवाज थोड़ी क्रैक होने लगी थी आखिरी में। ओके ओके। सो यही मेरा कहना है कि इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से, देखिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हैव यू गॉट द आंसर व्हाट एवर क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, हाँ आंसर सर, मिल गया जो आपने मुझसे पूछा जी था सर। क्वेश्चन। जी सर, जी सर। ओके ओके। सो नाउ वी कम टू व्हाट, रूटिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ द पैकेट, ठीक है। तो और एक चीज और ध्यान रखिएगा, फ्रेगमेंटेशन में हम जैसे मान लीजिए उसको 5 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, तो पांचों पार्ट की उनको हमें हेडर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, हेडर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कोई एक पैकेट में अगर आपने हेडर नहीं ऐड किया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि हमको कहाँ जाना है। तो सारे के सारे फ्रेगमेंटेड पैकेट्स में भी आपको हेडर लगाने पड़ेंगे, सोर्स एंड डेस्टिनेशन सबमिट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसमें काम बढ़ जाता है, बट डिले थोड़ा कम हो जाता है, डिले कम लगता है और जल्दी पहुंच जाता है पैकेट एज compared to long length packet. So routing and forwarding is the first mechanism. तो बेसिकली नेटवर्क लेयर में इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, अभी मैंने आपको बताया ही था। लेकिन अगर आपसे कोई ये बोलेगा, तो आपको ये केवल इतना ध्यान रखना है कि केवल पैकेट ही ट्रांसमिट करता है बेसिकली। पैकेट में भी स्मॉल लेंथ पैकेट, फ्रेगमेंटेड पैकेट, बट इट विल बी the packet form with the packet or datagram with the network layer responsible to transmit, clear, which is a combination of basically LAN नहीं। हेलो, यस सर।
एक्चुअली बीच बीच में थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, इस वजह से वो डिस्कनेक्ट होके फिर रिकनेक्ट होता है, ठीक है ना। देयर इज सम इशू विद द नेटवर्क। सो मैं डिस्कस जो कर रहा था आपसे, द राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा पैकेट होता है वो बेस्ट रूट पाथ को फॉलो करता है। जैसे जीपीएस सिस्टम में होता है, हम लोग ट्रैक करते हैं, तो जब देखते हैं तो जो हमको कई सारे पाथ दिखाता है, लेकिन उसमें जो सबसे कन्वीनियंट पाथ होता है, जिसपे आपका सबसे कम ट्रैफिक होता है, वो आपको सबसे सुटेबल पाथ दिखाई देगा कि मतलब हमें इससे जाएंगे तो हमें सबसे कम टाइम लगेगा। वी हैव मल्टीपल पाथ बट वी फाइंड द बेस्ट पाथ which have less congestion, which have less time, which have less distance to cover, clear। इस तरह से हम उसको बेस्ट पाथ देखते हैं, तो यही चीज इसमें भी है। So it also provide the best suit path to get transfer from one end to another end. Now, if we talk about the forwarding, if routes is applying strategies that and running some routing protocols to create the decision making table होती है जो decision देती है कि decision help मतलब help करेगा आपका कि आपके लिए कुछ प्रोटोकॉल डिसाइड करेगा कि जिससे आपको रूट चूज करने में आसानी हो, ठीक है। रूट मतलब फॉरवर्ड करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। जब आपके पास सोर्स एंड पे कोई पैकेट आ रहा है, तो उसको जब डेस्टिनेशन पे जाना है, तो उसको हम जो इंटरफेस दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम उसको रूट जो प्रोवाइड करेंगे कि किस रूट से उसको होके जाना है, तो दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसके लिए टेबल होती है जो राउटिंग टेबल जिसको हम बोलते हैं, तो वो बताएगा आपका कि किस किस रूट से होके वो जा सकता है, ठीक है। व्हाट आर द सुटेबल रूट्स विदाउट एनी कंजेशन इट कैन फॉलो, क्लियर। तो जब भी when a router receives a packet from one of its attached network, it need to forward the packet to another attached network or to some attached network. So to make this decision, the router uses a piece of information in the packet header, which can be the destination address or a label, ठीक है। तो इसको हम फॉरवर्डिंग टेबल से फाइंड करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, एक फॉरवर्डिंग टेबल यहाँ पे दी हुई है, हाउ द पैकेट गेट प्रोसेस और डेटाग्राम गेट प्रोसेस। Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay, so you can see clear. So the packet gets route from one side to another side with the interface second, ठीक है। तो send the packet out of the interface 2, clear। तो out of the interface 2 we get the packet at the receiver side, ठीक। तो B and C can be the same or different, मीन दोनों आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज द फॉरवर्डिंग टेबल। लाइक कुछ अदर सर्विसेज हैं जो हमारा ये नेटवर्क लेयर प्रोवाइड करता है, जैसे एरर कंट्रोल। ये डायरेक्टली कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली ये एरर कंट्रोल सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जो भी हम पैकेट को फ्रेगमेंट करते हैं, ठीक है, वो हर एक राउटर के पास जा रहा है, ठीक है। तो हर एक राउटर को एक डिसीजन लेना है उस पैकेट में कि एरर चेकिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर एरर चेकिंग नहीं है, तो जैसे मान लीजिए एक पैकेट हर एक राउटर के पास रिसीव हो रहा है एंड सम एरर इज एडेड विद दैट पर्टिकुलर पैकेट, सो एरर चेकिंग मैकेनिज्म शुड आल्सो बी देयर, क्लियर। द डिजाइनर ऑफ द नेटवर्क लेयर हाउएवर हैव एडेड ए चेकसम फील्ड। आप लोगों ने पढ़ा होगा एरर चेकसम, क्लियर। तो एक तरह से एक चेकसम फील्ड हम लोग डेटा